آپ دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، گریزاری کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آسمان خاموش ہے، خدا خاموش ہے۔ میرے عزیزوں، میں آج آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گی جو آج تک ہو سکتا ہے کسی بھی پاسٹر نے آپ کو سیدھے لفظوں میں نہ بتائی۔ بات یہ ہے کہ جب آپ کبھی کوئی اپنے لیے دعا مانگ رہے ہوں، کوئی چیز مانگ رہے ہوں، تو اس دعا کا جواب ملنے میں یا اس چیز کے ملنے میں تاخیر ہو رہی ہو، دیر ہو رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے شیطان کا ہاتھ یا آپ کے لیے ہر ایک مستقل دروازہ جو ہے وہ شیطان نے بند کر دیا۔ نہیں، بعض اوقات خدا خود ہمارے لیے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں خدا ایسا کرتا ہے؟ ہم بائبل مقدس کی روشنی میں آج جانیں گے اور سیکھیں گے کہ بائبل ہمیں اس کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ سب کو جتنے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں، ایک بار پھر بہت بہت خوش آمدید، اور خدا کی خادمہ ملکہ لیورا کا آپ سب کو مسیح کی محبت میں سلام۔ آج کی پہلی بات، خدا دعا پر نہیں بلکہ نیت پر نظر کرتا ہے، دل پر نظر کرتا ہے۔ یعقوب کے خط کے چوتھے باب کی تیسری آیت کے اندر لکھا ہے بائبل مقدس میں، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ بائبل مقدس کے اندر اس خط کا جو مصنف ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ تم مانگتے تو ہو پر پاتے نہیں۔ کیوں؟ اس نے ریزن بتائی، وجہ بتائی، کیونکہ تم بری نیت سے مانگتے ہو، تمہاری نیت اچھی نہیں ہے، تمہارا اس کے پیچھے مقصد اچھا نہیں ہے۔ تم اپنی عیش و عشرت کے لیے، اپنے خرچ کے لیے، اپنے آرام کے لیے چیزیں مانگتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، اس لیے تمہیں نہیں ملتا۔ بائبل مقدس کے اندر ہمیں ایک بڑی خوبصورت مثال ملتی ہے گنتی کی کتاب کے اندر، اس کے 22ویں باب سے لے کر جب ہم اس کے 24ویں باب کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں مثال ملتی ہے ہمیں بلک اور بلام کی۔ بلک جو مواب کا بادشاہ ہے، وہ بلام کو پیغام بھیجتا ہے کہ وہ آ کر اس کے لیے ایک قوم پر لعنت کرے۔ آپ خود گھر جا کر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو آپ خود اس سٹوری کو پڑھ سکتے ہیں، بلک اور بلام کی ساری کہانی، کہ کیسے جو ہے وہ بلک بادشاہ بلام نبی کو بلاتا ہے کہ وہ آ کر کیا کرے، اس کے لیے ایک قوم پر لعنت کرے۔ پہلی بات کہ دعا، خدا، ہم نے کیا بات کی کہ خدا جو ہے وہ دل پر نظر کرتا ہے، نیت پر نظر کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہے۔ جب بلک بادشاہ بلام نبی کے پاس اپنے سرداروں کو بھیجتا ہے اسے بلانے کے لیے، تو وہ پہلی دفعہ میں ہی، خدا کا نبی ہے، اسے چاہیے تھا کہ وہ پہلی دفعہ میں ہی بے روک ٹوک خدا کا جواب جو خدا نے اسے دیا تھا پہلی بار میں ہی دعا کرنے پر کہ تو ان کے ساتھ نہ جانا، تو ان کو منع کر دینا، وہ کہہ دیتا کہ میں نہیں جاؤں گا، وہ اپنی بات سے نہ ہٹتا نہ پھرتا۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ دوبارہ بار بار خدا سے دعا نہ کرتا، لیکن جب اس نے بلک بادشاہ نے ایک بار سرداروں کو بھیجا، اس نے منع کر دیا، خدا سے دعا کی، خدا نے کہا کہ تو نہیں جائے گا، تو اس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ خدا نہیں چاہتا کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں، لیکن اس نے پھر سے دوبارہ سے کچھ اور زیادہ اچھے لوگوں کو، بڑے عہدے پر فائز لوگوں کو اس کے پاس بھیجا، اس کو جا کر کہا کہ جب تو آئے گا تو میں تجھے اچھا حصہ دوں گا، تجھے بہت سارا مال دوں گا، اچھے منصب پر میں تجھے فائز کروں گا۔ اس طرح سے بلام نبی کے دل میں بھی لالچ آ گیا، اس کی نیت بری ہو گئی، اور سب سے بڑی بات کہ جب خدا نے اسے منع کر دیا کہ یہ دعا کرنی ہی نہیں، یہ دعا ٹھیک ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے پاس کوئی اور ریزن نہیں ہے، کوئی اور وجہ نہیں بنتی کہ وہ بار بار خدا کے حضور جائے اور دعا کرے۔ پھر آپ جب اسٹوری کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر کیسے کیسے خدا نے اسے کہا اور کیسے وہ وہاں پر گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جب پہلی 2 بار بلک بادشاہ نے اس سے کہا کہ تو دعا کر، میں تجھے وہاں پر لے جاتا ہوں، میں تجھے وہاں پر لے جاتا ہوں، وہاں پر جا کر جب بلام نبی نے اسے کہا کہ تو مذبح بنا، تو اس پر قربانی گزران، تو میں خدا سے دعا کروں گا، اس کے باوجود خدا نے اس سے وہی دعا کروائی جو خدا چاہتا تھا، بلکہ وہ دعا نہیں ہوئی جو وہ اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے تھے، اپنے عیش و عشرت کے لیے کرنا چاہ رہا تھا، یا جو بلک بادشاہ ہے اس کی بری نیت تھی، وہ اپنی نیت کے مطابق دعا کروانا چاہ رہا تھا، خدا نے وہ نہیں کروایا۔ پھر جب تیسری بار بلام نبی پیشن گوئی کرتا ہے تو پھر خدا
जब उससे बुलवाता है, तो बलाम नबी खुद अपनी ज़ुबान से कहता है कि क्या कहता है? वो कहता है बलाम नबी कहता है कि बऊर का बेटा बलाम कहता है, यानी वही शख्स जिसकी आँखें बंद थीं, ये कहता है। जब उसने अपने लिए ये बात की कि यानी वही शख्स जिसकी आँखें बंद हैं, वो ये कहता है कि खुदा ये चाहता है। इसका मतलब कि पहले वो भी लालच में आ गया। अपने फ़ायदे के लिए उसने वो दुआ करनी चाहिए जो खुदा की मर्ज़ी के खिलाफ थी, जो खुदा को नापसंद थी। खुदा इसलिए भी दुआओं को पूरा नहीं करता, इसलिए भी दुआओं को नहीं सुनता, क्योंकि खुदा जो है वो आपकी दुआ पर नहीं बल्कि आपकी नीयत पर नज़र करता है कि आप किस नीयत से दुआ कर रहे हैं। क्या आपकी नीयत है? आज भी लाखों मसीही ऐसे हैं जो दुआ करते हैं अपने मकसद के लिए। वो चाहते हैं कामयाबी, शोहरत चाहते हैं। उसके पीछे वो खुदा का जलाल ज़ाहिर नहीं कर रहे होते, बल्कि उसमें वो चाहते हैं कि उनका नाम जो है वो ऊँचा हो, उनके नाम को शोहरत मिले, उनको कामयाबी मिले। और कुछ लोग तो दुआ करते हैं रिश्ता पाने के लिए, रिश्तों को मज़बूत करने के लिए, कि हमारे रिश्ते मज़बूत हो जाएँ, हम रिश्तों में आगे बढ़ सकें। लेकिन उनके दिलों के अंदर तल्ख़ी होती है, हसद होता है, अनावरी होती है। तो फिर कैसे वो समझते हैं कि उनकी दुआ सुनी जाएगी, वो समझते हैं कि खुदा उनके रिश्ते को जो है वो मज़बूत करेगा, उनके रिश्ते को आगे बढ़ाएगा। फिर कुछ लोग दुआ करते हैं अपनी रूहानी तरक्की के लिए, रूहानी ब्रेक थ्रू के लिए। लेकिन अगर उनकी ज़ाती पर्सनल ज़िंदगी को देखें तो उनकी पर्सनल ज़िंदगी ज़िंदगी के अंदर, उनकी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर खुदा की फ़र्माबरदारी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। उसमें कोई भी हमें खुदा की फ़र्माबरदारी नज़र नहीं आती कि खुदा जो चाहता है वो कर रहे हैं। लेकिन वो दुआ करते हैं कि हम रूहानी तरक्की हासिल करें, हम रूहानी तौर पर बहुत मैच्योर हो जाएँ, खुदा के नज़दीक आ जाएँ, मज़बूत हो जाएँ, लेकिन खुदा के साथ वफ़ादारी उनकी ज़िंदगी में नहीं नज़र आती। तो कैसे फिर हम यकीन कर सकते हैं कि हम जो दुआ करते हैं, खुदा उस दुआ को सुने? इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपनी नीयत को ठीक करें, अच्छी नीयत के साथ, अच्छे दिल के साथ जो है वो दुआ करें। उसके बाद दूसरी जो बात है, कुछ दुआओं को खुदा ताख़ीर से पूरा करता है। अब क्यों ऐसा है? खुदा क्यों दुआओं को ताख़ीर से पूरा करता है? जब हम यिर्मयाह के ख़त के 33वें बाब की तीसरी आयत को पढ़ते हैं, तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूँगा। ये आयत का पहला हिस्सा है। अब आप कहेंगे कि बात तो हो रही है कि खुदा जो है वो क्यों दुआ को जो है वो दुआओं का जवाब ताख़ीर से देता है, या क्यों ताख़ीर से सुनता है दुआएँ, देर लगाता है जवाब देने में। लेकिन बाइबल मुक़द्दस के अंदर तो लिखा है, खुदा कहता है मुझे पुकार दो मैं तुझे जवाब दूँगा। बाइबल मुक़द्दस के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं जहाँ पर जब उसके लोगों ने दुआ की तो खुदा ने फ़ौरन उनका जवाब दिया, उनकी दुआओं का जवाब दिया। लेकिन बाइबल मुक़द्दस के अंदर ही हमें ऐसी ऐसी मिसालें भी मिलती हैं जिनका जवाब खुदा ताख़ीर से देता है, क्योंकि उसके पीछे खुदा का कोई बड़ा मकसद होता है। अब पैदाइश की किताब के अंदर ही हमें बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है। पैदाइश की किताब के 21वें बाब की जब हम शुरू से पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें स्टोरी मिलती है अब्राहम और सारा की स्टोरी। खुदा ने जब 12वें बाब के अंदर खुदा अब्राहम को मुल्के किनान के लिए, वादे के मुल्क के लिए उसके आबाई खानदान से निकाल कर लेकर आता है, सूर से निकाल कर लेकर आता है। तो खुदा ने जब वादा किया अब्राहम से और सारा से कि मैं तुझे औलाद दूँगा और तेरी नस्ल से जो है वो कौमें और नस्लें निकलेंगी और तू कौमों का बाप कहलाएगा। ये सारे वादे जब खुदा ने किए तो तब अब्राहम 75 वर्ष का है। लेकिन खुदा ने उसे बेटा दिया 25 साल बाद। जब अब्राहम 100 वर्ष का हुआ, 21वें बाब को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदा का वादा हमें पूरा होता हुआ नज़र आता है कि खुदा वहाँ पर उस वादे को पूरा कर रहा है जो खुदा ने अब्राहम और सारा के साथ किया था, यानी उस बेटे का जिसका वादा उसने किया, यानी इसहाक का, वो वादे का फर्जंद हमें वहाँ पर मिलता है कि पैदा हुआ। क्यों खुदा ताकीर करता है? क्योंकि खुदा का उसके पीछे कोई मकसद होता है। खुदा ने इसहाक को देर से क्यों पैदा किया? पहली बात तो ये थी कि खुदा अब्राहम के ईमान को मजबूत कर रहा था। खुदा अब्राहम के ईमान को बढ़ा रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ खुदा पर ईमान रखे, उसी पर तवक्कल रखे। और दूसरी बात, ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि वो बच्चा, वो बेटा जो उनसे पैदा होने वाला है, वो खुदा की कुदरत से पैदा हुआ है, ना कि इंसान की अपनी ताकत, अपनी कुदरत से। अब बुढ़ापे में बेटा पैदा होना बड़ी बड़ी मौजज़ाना बात है।
लेकिन ये खुदा के नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं है। ये खुदा की कुदरत है, खुदा की हिकमत है, खुदा का फ़ज़ल है कि खुदा जब चाहे, जिस भी उम्र के हिस्से में चाहे खुदा औलाद बख्श सकता है, क्योंकि वही कादिर खुदा है। और तीसरी बात वजह ये थी कि खुदा चाहता था कि आने वाली नस्लों से वादों की बुनियाद जो है, वो खुदा ने जो की थी उनके लिए वादों की बुनियाद वो पूरी हो सके। इसीलिए याद रखें कि खुदा दुआओं का जवाब कभी-कभी फ़ौरन नहीं देता, क्योंकि इसके पीछे खुदा का कोई मकसद होता है और आज भी खुदा का यही मकसद है। जब खुदा दुआओं का जवाब फ़ौरन नहीं देता तो इसका मतलब है कि खुदा इंसान को तैयार कर रहा होता है। इंसान के अंदर बर्दाश्त पैदा करने करने के लिए बर्दाश्त के लिए उसको तैयार कर रहा होता है, उसके किरदार को तैयार कर रहा होता है ताकि इंसान इस काबिल हो सके कि खुदा जो उसको बरकत देने वाला है, वो उस बरकत को सँभाल सके। यही उसका मकसद है। आज की तीसरी और बड़ी अहम बात जो याद रखने वाली है, वो याद रखिएगा कि हम लोग चाहते हैं कि खुदा हमारी दुआओं का जवाब फ़ौरन दे। लेकिन क्या आपके ज़हन में ये बात आई है कि आपने कभी ये चाहा है कि आप गुनाह को फ़ौरन छोड़ दें? ऐसा नहीं होता। आज की तीसरी बात भी यही है कि गुनाह जो है वो गुनाह दुआ का सबसे बड़ा कातिल है। गुनाह दुआ को कत्ल कर देता है, दुआ को पूरा नहीं होने देता। ज़बूर की किताब के 66वें ज़बूर की 18वीं आयत के अंदर लिखा है, ज़बूर में कहता है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखूं तो खुदावंद मेरी दुआ ना सुने। वो कहता है कि अगर मैं दिल में अपने दिल के अंदर बदी रखता हूं तो खुदा फिर मेरी दुआ को नहीं सुनेगा। वो नहीं सुनता दुआ को। जब हम बदजुबानी करते हैं, हमारी जुबान से बदइखलाकी हो जाती है, हमारी जुबान से ऐसे अल्फाज नाहक निकल आते हैं जो अच्छे नहीं होते दूसरों के लिए और हमारे खुद के लिए भी। जब हम दूसरों को मुआफ नहीं करते, जब हम अपनी आंखों से नापाकी करते हैं, नापाकी की चीजें देखते हैं और अपने हाथ और पांव से नापाकी के काम करते हैं और फिर हमारे दिल के अंदर बड़ी नफरत भर जाती है, तो फिर क्या होता है? फिर हमारी दुआएं सुनी जाती? नहीं, हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती, क्योंकि ये सारी चीजें गुनाह के जिम्मे में आती। ये सारी चीजें गुनाह है और जब हमारे अंदर गुनाह है तो फिर क्यों कर खुदा हमारी दुआ को सुने? फिर क्यों कर हम कह सकते हैं कि खुदा हमारी दुआ सुनता है? फिर वो हमारी दुआओं को नहीं सुनता, क्योंकि गुनाह जो है वो एक दीवार की तरह काम करता है हमारी दुआ के सामने। जब हम दुआ करते रहते हैं, तो फिर वो हमारी दुआ जो है वो उस गुनाह की दीवार से टकरा कर वापस आ जाती। वो खुदा तक नहीं पहुँचती या खुदा उस दुआ को सुनता ही नहीं। फिर हम उस दुआ के जवाब के मुंतज़िर भी ना रहें, क्योंकि खुदा जो है वो उन दुआओं का जवाब नहीं देता। आज की चौथी और आखिरी बात, खुदा कुछ ऐसी दुआएं भी हैं जिनका जवाब जो है वो खुदा इसलिए रोक देता है क्योंकि वो दुआएं छोटी होती हैं। उनकी नवीयत कैसी होती है? इफिसियों के खत के तीसरे बाब की 20वीं आयत के अंदर जब हम उस आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हम साफ साफ वाजे वाजे हम देख सकते हैं कि जो चीजें हम खुदा से मांगते हैं ना, अपनी जिस्मानी हम मांगते हैं या सोचते हैं कि हमारे लिए ये हो जाए, हमारे लिए वो हो जाए, वो शायद हम छोटी सोच की तरह या छोटी सोच रख कर मांगते हैं, लेकिन खुदा हमारे लिए उससे कहीं ज्यादा बड़ा करना चाहता है। खुदा की कुदरत ऐसी है कि वो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है और बहुत बड़ा कर सकता है। हम छोटी छोटी दुआएं मांगते हैं और छोटा छोटा मांगते हैं, लेकिन खुदा हमारे लिए बड़ा करना चाहता है, बहुत ज्यादा करना चाहता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर, शमूएल की किताब के अंदर हमें हन्ना की मिसाल मिलती है। हन्ना दुआ मांग रही है सिर्फ बेटे के लिए, अपनी जिस्मानी जरूरत को पूरा करने के लिए, अपनी जाती खुशी को पूरा करने के लिए, लोगों की बातों से, लोगों के तानों से बचने के लिए सिर्फ एक बेटा मांगे। लेकिन खुदा ने ताखीर की, खुदा ने उसकी दुआ का जवाब देने से रुका रहा, देर की। क्यों? क्योंकि वो छोटी चीज मांग रही थी, लेकिन खुदा उससे बहुत बड़ा देना चाहता था, बहुत ज्यादा देना चाहता था। वो सिर्फ एक बेटा मांग रही थी, लेकिन खुदा उसे एक नबी देना चाहता था। वो अपनी जाती खुशी के लिए, अपने घर की खुशी के लिए, अपनी जिस्मानी खुशी के लिए बेटा मांग रही थी, लेकिन खुदा उसे कौम की बरकत के लिए बेटा देना चाहता था।
खुदा ने उसे नबी दिया, जिसने दाऊद बादशाह को मसा किया, जो अपने वक्त का, उस दौर का बहुत अच्छा और बहुत बड़ा नबी लीडर था, ममसू था वो खुदा का वो पसंदीदा था, उसका नजीर था खुदा का, और उसके सबब से पूरी कौम ने बरकत भी पाई। और ये खुदा की मर्जी के मुताबिक हुआ था, क्योंकि पहले समूएल के अंदर जब हम पढ़ते हैं, उसके पहली बाब की 5वीं आयत को ही पढ़ते हैं, तो वहां पर खुदा कहता है, कलाम में लिखा है, कलाम कहता है कि खुदा ने खुद उसका रहम बंद किया था। इसका मतलब कि खुदा ने खुद देर की, खुद ताखिर की, क्योंकि खुदा की मर्जी ये थी कि खुदा बहुत बड़ा करे, खुदा बहुत बड़ा दे। खुदा खामोश होता है तो खुदा सिखाता है। जब खुदा खामोश होता है, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा की तरफ से ना है, नहीं, बल्कि वो खामोश है क्योंकि खुदा आपको सिखाना चाह रहा है। खुदा चाहता है कि तुम सीखो। खुदा आपको तरबियत के हिस्से से गुजारना चाहता है ताकि आप सीख सके। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी दुआएं जाया हो रही हैं। अगर आज आप समझते हैं कि मेरी दुआ का जवाब नहीं मिल रहा, मेरी दुआ का जवाब आने में ताखीर हो रही है, देर हो रही है, खुदा सुनता नहीं है, पहली बात तो अगर खुदा सुनता नहीं है तो आप गुनाह में तो नहीं, इस बात को चेक करें। अगर आप गुनाह में हैं तो फिर गुनाह से निकलें, फिर खुदा आपकी सुनेगा। और दूसरी बात कि खुदा अगर नहीं सुन रहा तो खुदा देर कर रहा है, उसके पीछे भी खुदा चाहता है कि वो आपको कुछ बड़ा दे। खुदा चाहता है कि वो आपके लिए सही वक्त पर, सही टाइम पर बहुत कुछ करे, क्योंकि ये खुदा की मर्जी है। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि खुदा आपको देना नहीं चाहता, या खुदा आपकी दुआ को सुन नहीं रहा, या खुदा आपको नहीं देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा अपने वक़्त पर देगा, खुदा आपको बहुत बड़ा देगा, और खुदा आपको बरकत से मालामाल कर देगा। अगर आपके ज़हन में ऐसी बात, ऐसा सवाल उठता है, तो ज़रूर आप इन 2 बातों को ज़रूर कीजिएगा। पहली बात कि आप अपने दिल को पाक करें। दूसरी बात, अपनी नीयत को ठीक रखें। फिर दुआ करें, फिर देखिए खुदा आपके लिए क्या कुछ करेगा, और फिर खुदा आपकी ज़िंदगी में कितनी बरकतों को नाज़िल करेगा। तो नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, आप ज़रूर इसे दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि आपके शेयर करने के सबब से किसी ऐसे शख्स तक ये पैगाम पहुँच सके, जो शायद शिकस्ता दिल होकर बैठा है, टूटा हुआ है, और ये सोच रहा है कि मेरी दुआ नहीं सुनी जा रही और मेरी दुआओं का जवाब क्यों नहीं मिल रहा। तो ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और बरकत पा सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।